Just a minute. Good evening, everyone. I'm Meghna from Simply Sport Foundation. I hope you all are doing great. Thank you for joining this session, Championing Change. We are doing this on the occasion of International Youth Day to acknowledge and honor the inherent qualities of youth. A warm welcome to all the participants. And a quick heads up, please stay on mute so that we avoid any kind of chaos. I also encourage everyone to be interactive and ask more questions because that'll help you gain the most out of this session. For ease of coordination, please put all your questions in the chat box so that Shweta will answer them all at the end of the session. And without any further ado, please stay on mute. That's one more reminder. And on to today's session. With a great pleasure, I welcome Meghna, just one more thing. If everybody can switch on their videos, that will help also. We can see the Brida kids so nicely kind of there. It really helps. So yeah, if guys can switch on their videos, that would be nice. Thank you. Yeah, sorry, I missed that. Yeah, so to give you a quick introduction about our speaker today, Ms. Shweta Varnekar, who would be the speaker for the session, is a senior program associate at Parisar. She has been working on a variety of urban issues in the umbrella of sustainable urban transportation, air pollution, and livable cities. Her areas of interest involve behavior change for sustainability and policy advocacy for the same. In her free time, she likes to write, paint, and take walks in the city. Parisar, now coming to Parisar, Parisar is a Pune-based civil society organization working for better cities with a focus on sustainable urban transportation, road safety, urban design and planning, heritage conservation, and air pollution. I'm really looking forward for the session. A very big welcome to all of you again. Over to you, Shweta. Thank you so much for that introduction. Yes, so I'll just share my screen first and then we can just dive into it. Okay, I'm sorry for that. Yeah. Yes, so मुझे बोला गया है कि आज का सेशन हिंदी में करना है और मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मुझे आप तक पहुंचाना है आज वो मैं अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा सकूं। इंग्लिश शब्द आएंगे बीच बीच में, तो प्लीज बेयर विथ इट, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं एंड में वापस कोशिश करूंगी कि हिंदी में आपको ठीक से समझा सकूं। मेरा नाम श्वेता है और मैं परिसर नाम की एक संस्था है पूना में जिसमें कई सालों से काम कर रही हूँ, और हमारा जो काम है वो अभी मेघना जी ने इंट्रोड्यूस किया ही है। लेकिन जो आई थिंक ब्रॉडली अगर बोला जाए हमारा जो काम है वो ये है कि हम जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस चीज को बोलते हैं, हम शहरों में रह रहे हैं, गाँवों में रह रहे हैं, जहाँ कहाँ रह रहे हैं, वहाँ की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं कि हमारे पास स्वच्छ हवा है कि नहीं, स्वच्छ पानी है, खाना अच्छा मिलता है कि नहीं, रास्ते अच्छे हैं कि नहीं, अगर मुझे कहीं जाना है तो परिवहन की सुविधा है कि नहीं, ये सारी चीजें मिला के शहर अच्छे या बुरे या रहने लायक बनते हैं। और हमारा काम यही है कि ये जो हमारे शहर है हम इसे कैसे ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए अच्छे और रहने के लिए लायक बना सकते हैं। तो ये बहुत संक्षिप्त में मैं बस बताना चाहती थी कि परिसर क्या कर रहा है। तो मुझे जब अदिति ने मुझे अप्रोच किया कि एक ये इंटरनेशनल यूथ डे है और हमें चाहिए कि कोई स्पोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों चीजों को लिंक करे, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो ब्लैंक हो गई। मैंने सोचा कि अरे पता नहीं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं, पर ये मुझे एकदम ठीक से पता था कि ये जो हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, इससे कोई परे नहीं है।
आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप छोटे हो, बड़े हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपको पर्यावरण से जो आपका रिश्ता है वो रहेगा ही, और उसका परिणाम आपके ऊपर हो ही रहा है। बस यही एक फर्क हो सकता है कि आपको शायद वो पता नहीं है। और आज के सेशन का काम यही है कि आपको ये जो लिंकेजेस है कि मैं जो करती हूँ, मैं जैसे रहती हूँ, मैं जिस चीजों को चूज करती हूँ कि आज मुझे क्या साइकिल से मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या मुझे गाड़ी से कोई स्कूल छोड़ रहा है, क्या मेरे पास गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी नहीं है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये जो लिंकेजेस है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की आज कोशिश करूंगी। और उसी समय पे मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे बहुत सारी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें इस प्रेजेंटेशन को करने के वक्त में मिली कि मैं एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं ये सब चीजें बता पाऊँ। तो जस्ट लेट्स डाइव इनटू दिस प्रेजेंटेशन फर्स्ट। जब मैं प्रेजेंटेशन बनाने लगी, मुझे लगा कि आधा घंटा कौन मेरी बात सुनने वाला है, सबको तो बोर हो जाएगा कि कौन है ये, हमें क्या बता रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन तो बनता है। आई एम सॉरी, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन मैं जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दूंगी वो हिंदी में दूंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो उलझन है स्क्रीन पे, ये है उलझन वाले जो प्रश्न है हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे आसपास में जो चीजें हो रहे हैं उसके बारे में। मैंने सोचा क्यों ना ये प्रश्न हम पहले रखे जाए। तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसे है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। ओके, तो मैं बस जानना चाहूंगी आप में से कितने बच्चों ने क्लाइमेट चेंज या वातावरण बदल इसके बारे में सुना है, अपने स्कूल में पढ़ा है? हाथ अगर ऊपर करेंगे तो भी मैं देख सकती हूँ आपको। क्लाइमेट चेंज किसी को पता है क्या है? थोड़ा बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है। ओके, क्लाइमेट चेंज अभी तो मुझे जैसे दिख रहा है स्क्रीन में, मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी को पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, वातावरण बदल क्या है। पर कोमल गोले जी ने हैंड रेज किया है, आई थिंक शी इज अ कोच, राइट? Subhashri put her hand up. ओ या, कोमल जी ने भी हाथ ऊपर किया है, आई थिंक ये कोचेस है, राइट? कोमल, Yes, शुभश्री, yes. हाँ ठीक But है। she's the athlete. Yeah. यस, बट दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग कि जो बच्चों को सिखाते हैं एटलीस्ट उनको ये पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो बच्चों तक ये बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। दूसरा प्रश्न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या भला है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या एक ही चीज है, अलग अलग चीज है, इसके क्या होता है, इसमें कुछ संबंध है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा और चौथा प्रश्न है, इसमें आपके फायदे की बात है कि मुझे ये जो चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, इसका मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मेरे ऊपर कुछ परिणाम इसका हो रहा है कि नहीं। चौथी जो चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कुछ अलग परिणाम हो रहे हैं क्या, कि अगर मैं कोई खेल खेल रही हूँ, ये सब चीजों से जो धरती में बदलाव हो रहे हैं, मेरे आसपास बदलाव हो रहा है, उसका मेरे स्पोर्ट पे क्या परिणाम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो बहुत बोल्ड और बड़ी है, कि कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट। ये जो मतलब अर्थ के लेवल पे, प्लैनेट के लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें मैं अकेली या अकेला कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट आंसर आई एम गोइंग टू लीव यू एट द एंड। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? सो पहले एक एक करके जाते हैं ताकि थोड़ी लिंक लगे। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज और व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो ये जो चीजें हैं, ये तकनीकी चीजें हैं, मतलब ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है, और इनका आप जितने डेप्थ में जाएंगे उतना कम है। मैं भी इस चीज के बारे में, मेरा जो नॉलेज है वो वर्किंग नॉलेज है, क्योंकि मैं जिस चीज में काम करती हूँ, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, शहरी परिवहन में, उसका इन चीजों से बहुत निजी संबंध है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है। तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं, जैसे मैंने कहा, मुझे बस यही चाहिए कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो जैसे शब्द बता रहा है कि जो ग्लोब है हमारा, जो अर्थ है, धरती है, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कई सालों से थोड़ा 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 करके बढ़े जा रहा है। और अब वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसके बहुत सारे विपरीत परिणाम हमारे धरती पर हो रहे हैं। एक बस 2 मिनट के लिए मैं एक जस्ट इम्पोर्टेंट कॉल है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी या। सो ये जो चीजें हैं, ये हमें समझने की अभी थोड़ी सी जरूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करके एक फिनोमिनन होता है, एक कंसेप्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी धरती का जो तापमान है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे डटा हुआ है। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अपने आप में बुरी चीज नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही धरती का एक सर्टेन टेम्परेचर है, सर्टेन तापमान है, जिसकी वजह से धरती पे जीव जंतु जी पा रहे हैं, हम जी रहे हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों पे जीव नहीं है, पर धरती पे है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज की जो हीट है, वो हम अपने एनवायरनमेंट में ट्रैप कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। इसीलिए हमारी धरती पे पूरा बर्फ नहीं है, पानी है, अच्छा टेम्परेचर है, वेदर है, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कई सालों से जो मानव जाति ने एक्शंस लिए हैं, जिस प्रकार का डेवलपमेंट या विकास हम करते आ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश है, मीथेन का समावेश है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का समावेश है, ये चीजों की वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम जरूरत से ज्यादा धरती अपने वातावरण में हीट ट्रैप कर रही है, और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। और इसके जो परिणाम है वो अभी हम काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो बात चल रही है साइंटिफिक सर्कल्स में, एकेडमिशियंस में, वो बोल रहे हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का जमाना गया है, अभी हम ग्लोबल बॉइलिंग में है, मतलब उबल रहे हैं हम तो। और आपको भी, मुझे पता नहीं है कि आप कौन से शहरों से, गाँव से आ रहे हैं, लेकिन आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे समर्स है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर्स बहुत बढ़ रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा है, जो हीट स्ट्रोक की घटनाएं हैं वो ज्यादा है। और ये सब चीजें हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। इसके कंटेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज जो है, वातावरण बदल जो है, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है कि जो मतलब हमारे सीजन्स है, जो ऋतु है हमारे की, रेनी सीजन है, समर है, विंटर है, ये सब का साइकिल भी अभी चेंज हो रहा है। और जो आपदाएं है, मतलब जो बाढ़ आने की जो संख्याएं है, इंटेंसिटी है, जो हरिकेन्स है, मतलब जो साइक्लोन्स आते हैं, वो भी उनकी संख्या, उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ की परत है, जो सैकड़ों सालों से जमी हुई है, वो अभी बहुत तेजी से पिघल रही है। और इसके बहुत, मतलब जो परिणाम है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बड़े स्केल के हो रहे हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो ये बहुत सिंपली मैंने कोशिश की है कि दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। आगे अगर किसी के प्रश्न होंगे तो मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगी, पर अभी के लिए मैं इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो ये जो प्रश्न है कि ये मुझे अफेक्ट करता है कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब तो ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मुझे ये अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट तो कैसे कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, पर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। आई थिंक जो भी चीज हम कर रहे हैं, हम जिस भी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, हमारा एक एंड पॉइंट है। और वो एंड पॉइंट ये है कि ये चीजें जो है, हम शायद एयर पोल्यूशन के बारे में काम कर रहे हो, सिंपली स्पोर्ट इन चीजों में काम कर रहा है कि आपको स्पोर्ट्स के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़े। बट इन द एंड हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ये काम तो हम कर रहे हैं कि आप अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छी बनी रहे। और यही चीज है जो क्लाइमेट चेंज टारगेट करने वाला है। तो दो प्रकार के परिणाम होने वाले हैं, एक तो इकोसिस्टम पे परिणाम होगा, और दूसरा है कि हमारी जो सोसाइटी की संस्था है उस पे परिणाम पड़ेगा। इकोसिस्टम पे परिणाम पड़ेगा मतलब ऐसे होगा कि अगर आप फॉरेस्ट काटोगे, आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, आइस कैप्स मेल्ट होंगे, तो सी लेवल जो है, जो समुद्र की लेवल है, वो बढ़ेगी। और उसकी वजह से कई शहर, कई जो तटवर्ती देश है, उनकी बहुत सारी जमीन पानी के अंदर चली जाएंगी। जो मैंने जैसे बोला कि साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे, बाढ़ बढ़ जाएंगी, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं हैं कि बहुत ज्यादा बहुत बारिश हो रही है, नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और हमारी जो खेती के पैटर्न्स है, हम खाना कैसे खाएंगे अगर खेती जो है वो बारिश पे पनपती है, और बारिश कब आएगी, कैसे आएगी, हमें पता नहीं है, तो खाना आप कहाँ से आएगा?
तो ये सारी जो इकोसिस्टम में चेंजेस होंगी उसकी वजह से एलर्जीज बढ़ेंगी, एस्थमा जैसी बीमारियां है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो बढ़ेंगी, आपको अब पानी जो मिल रहा है, खाना जो मिल रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, डिसीजेस बढ़ेंगी, रोग बढ़ेंगे, ये सब जो होंगे ये इकोसिस्टम में बदल की वजह से होगा। और सोसाइटी में इसका परिणाम होता ही है। मतलब हम जैसे भी देख रहे हैं कि जो भी अभी जगत में चल रही वॉर्स है, जो रेफ्यूजीज है कि एक देश से दूसरी देश में लोग जा रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ये चीजें क्यों हो रही है? इनका कहीं ना कहीं संबंध वहां के नेचुरल रिसोर्सेज से है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही है। जो काम करने की हमारी क्षमता है, मतलब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरा जो काम करने का 4 घंटे काम करने का मेरा कैपेसिटी है, पर अगर ऑफिस आते वक्त इतनी धूप है कि मुझे गर्मी से मेरा हीट स्ट्रोक मुझे आ गया तो मेरा काम का दिन गया। तो काम करने की क्षमता कम होने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं, गरीबी बढ़ने वाली है, भूखमरी बढ़ने वाली है, और इसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी खराब होने वाला है। तो ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति को, हम में से इफेक्ट होने वाला है। कम या ज्यादा प्रमाण में होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन हर एक बंदा या बंदी इससे बचने वाला कोई भी नहीं है। ये जो डायग्राम है ये बहुत, मतलब जब मैं सोच रही थी कि अच्छा 1-2 स्लाइड्स में आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत मुश्किल बात है। और ये मुझे डायग्राम मिला, और मुझे ये डायग्राम मिला तो मुझे यही लगा कि एक एक्सप्लेन करने जैसी ये चीज ही नहीं रही है कि क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, और साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या परिणाम होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको ये तो पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ है, पूरा जमा हुआ इलाका है, सैकड़ों सालों से वहां पे बर्फ है। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और इस बर्फ में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतुओं ने अपना जो लाइफ साइकिल है वो रोक के रखा था, क्योंकि इतने बर्फ में वो सरवाइव नहीं कर सकते। पर ये बर्फ पिघलने की वजह से ये जो नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो नए जीव है, वो हमारे इकोसिस्टम्स में आ रहे हैं। इसका परिणाम रोग, डिसीजेस पे क्या होगा, एनवायरनमेंट में क्या होगा, हमें अभी तक पता नहीं है, ये हमें पता चलेगा। इसी के साथ जो कई स्पीशीज है, कई एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सदा के लिए धरती के ऊपर से लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। इनके इकोसिस्टम्स जो है, जो फॉरेस्ट्स है, वो हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज जो देश अभी पानी पिघलने की वजह से, बर्फ पिघलने की वजह से जो देश पानी में जाएंगे, जो शहर पानी में जाएंगे, वहां शहरों के लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारे जगहों पे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। और ये मतलब ये पूरा ये कवर ही नहीं कर सकती मैं कि क्या क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पर मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो अभी हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये आपको अफेक्ट करेगा, कम ज्यादा प्रमाण में करेगा, पर ये एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब आपका जो खेल है, आप अलग अलग खेल खेलते होंगे, आप अलग अलग खेलों का कोचिंग करते होंगे, क्या क्लाइमेट चेंज मेरे खेल से रिलेटेड है, और क्या ही रिलेटेड है, कितना ही रिलेटेड होगा? ऐसा प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही मतलब वाजिब है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये सब तो हो रहा है, ठीक है, वो तो कहीं दूर हो रहा है, नॉर्थ पोल में हो रहा है, साउथ पोल में हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, स्पोर्ट को तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैंने बहुत ढूंढ के मैंने एक इंडियन एग्जाम्पल ढूंढा, क्योंकि ये जरूरी है। मैं अगर आपको फॉरेनर्स के दिखाऊंगी तो आप बोलेंगे अरे ये तो वहां हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये एक नेशनल कबड्डी प्लेयर है, विकास गायकवाड़ करके। इनके आप देखते हैं बहुत खुशी का वाला फोटो है, उनके हाथ में अवार्ड्स है, पर अभी आज की तारीख में ये ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो, ये गांव से है, गांव के खिलाड़ी है, और ये इनका जो लाइवलीहुड है वो खेती के ऊपर है। और अभी वातावरण बदल की वजह से जो बारिश की का टाइमिंग नहीं रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से उनकी खेती ठप हो गई है। तो उनको काफी ज्यादा टाइम उनके खेती में देना पड़ रहा है, और उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं है। तो आज की तारीख में ये जो नेशनल चैंपियन है, ये ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और बिना ट्रेनिंग के वो खेल रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी जो इंजरीज का वल्नरेबिलिटी है, कि इंजरीज इनको ज्यादा हो सकती है, और ऑफकोर्स परफॉर्मेंस इनका अफेक्ट होगा ही, क्योंकि ये ट्रेन ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो है ना, है कि नहीं, कि क्लाइमेट चेंज और खिलाड़ी का क्या संबंध है? तो ये संबंध है। और ये आपको लगेगा कि अच्छा ये तो एक ही कोई चीज है, ऐसे बहुत सारे, मतलब मैंने जो ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पूजा पाटिल नाम की जो ताइक्वांडो प्लेयर थी, उनको खेलना छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कोल्हापुर से थी, और कोल्हापुर में जो 2-3 बार फ्लड्स आए, जो बाढ़ आई, उसके वजह से उनका पूरा घर तहस नहस हो गया, उनको बहुत बार रिलोकेट करना पड़ा, उनको ताइक्वांडो छोड़ना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहीं कहीं हमारे देश में छुपे हुए हैं, लेकिन लोग अभी ये कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं कि अरे ये चीज क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही, ये चीज पर्यावरण की वजह से हो रही है। तो ये है कि जैसे स्पोर्ट क्लाइमेट चेंज से कैसे अफेक्ट होगा। और ये तो इंटरनेशनली न्यूज काफी है, और बहुत, मतलब मैं तो अचंभित हो गई ये न्यूज पढ़ के कि एक रिसर्च ऐसा भी है कि जो शॉर्ट प्लेयर्स है, शॉर्ट फुटबॉलर्स है, जिनकी हाइट कम है, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का परिणाम ज्यादा होगा। तो ये ऐसा भी कुछ रिसर्च है। तो ये सारी चीजें अभी उभर के आ रही है कि क्लाइमेट चेंज का स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये जो अगला न्यूज आइटम है ये वो है कि 2030 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। और आपको पता है कि ओलंपिक्स बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, 8-10 सालों से शुरू हो जाती है। पर ये लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 2030 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे करे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ पे बर्फ 2030 में रहेगी। आप बोलिए इस चीज को क्या कर सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि मैं 10 साल में कहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा, कहाँ पे क्या वेदर होगा, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये कितनी बड़ी अलार्मिंग चीज है, ये कितनी दिक्कत वाली चीज है। और भी न्यूज आर्टिकल्स है कि फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट होता है, 100 सालों में ये हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सारे फुटबॉल स्टेडियम्स जो है वो बारिश की वजह से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जो बिना टाइम की जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। केनिया जो देश है, जहाँ के सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया रनर्स जहाँ से मिलते हैं, वो उन्होंने भी वार्न किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस अफेक्ट होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, जिससे ये हमें समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज और स्पोर्ट का कितना नजदीकी रिश्ता है। तो आपके लिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, दीज आर योर इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि आपको हीट की वजह से आपका परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, आपको एयर पोल्यूशन को ज्यादा मतलब आपको ज्यादा पोल्यूटेड एयर आप ब्रीथ कर रहे हो, उसकी वजह से आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे इवेंट्स और रेसेस कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये जो वेदर के इवेंट्स है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत हीट है, वाइल्ड फायर्स है, इसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा जो गायकवाड़ थे, उनको कबड्डी के उनका खेल कम करना पड़ा। कुछ तो जो ड्रॉप आउट्स है कि आप खेलने की आपकी जो कैपेसिटी ही है वो भी आपकी कम हो सकती है, आपको शायद खेल छोड़ना पड़े, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है आपको खेलने को अलाउ नहीं कर रहा है। अभी मैं प्रश्न को थोड़ा उल्टा घुमाऊंगी कि पहले तो हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज से स्पोर्ट अफेक्ट होता है कि नहीं, खेल अफेक्ट होता है कि नहीं। अभी एंड को ही आ रहा है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द खत्म करूं। पर ये जानना चाहिए कि स्पोर्ट्स का क्लाइमेट चेंज पे क्या अफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको समझना, अगर ये समझना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो स्पोर्ट का कम्युनिटी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जो विविध खेल है, अलग अलग खेल है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इन्वॉल्व है, कोचेस इन्वॉल्व है, ये इवेंट्स करने में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ये सब होता है, ये एक इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है ये कितना कार्बन प्रोड्यूस करती है, जितना कि एक मीडियम साइज का देश, शायद इंडिया हो या सिंगापुर हो, वो जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा, इतना कार्बन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है। और कार्बन की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हो रही हैं। सो जस्ट एज एन एग्जांपल, ये जो बिग इवेंट्स है, बड़ी बड़ी इवेंट्स है, कि 2016 का जो रियो ओलंपिक्स था, उसमें 3.6 मिलियन टन्स का CO2 प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। 2018 का जो रशिया का वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें 2.16 मिलियन टन का CO2 का प्रोडक्शन हुआ। तो आप इमेजिन करिए कि अगर ये इवेंट्स है, ये जो इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, ये अगर ध्यान रखे कि अपना कार्बन एमिशन और अपना जो मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजों के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं, तो कितना कार्बन एमिशन कम होगा, और कितना इम्पैक्ट, कार्बन फुटप्रिंट जो है स्पोर्ट्स का, वो कितना कम हो सकता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत पॉजिटिव चीज है और मैं चाहूंगी कि ये बच्चे सारा बहुत ध्यान लगा के देखे। पहला फोटो तो है सेरेना विलियम्स का। सेरेना विलियम्स को कौन नहीं जानते हैं। ये मैंने फोटोज ढूंढ निकाली है क्योंकि स्पोर्ट्स का और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट है और वो है कि स्पोर्ट्स पर्संस आर रोल मॉडल्स। आप जब खेल खेलते हो, आप नेशनल लेवल पे खेलोगे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलोगे इंशाल्लाह, और आपको देख के लोग बोलेंगे कि मुझे ऐसे बनना है। और जब आप एक चीज के बारे में स्टैंड लोगे तो आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो एबिलिटी है कि आप बहुत लोगों का बिहेवियर अफेक्ट कर सके। और अभी बहुत रिसर्च ऐसे आ रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल चेंज है कि मैं मेरे छोटी छोटी मैं एक्शंस है, मैं अभी प्लास्टिक ना यूज करके मैं कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास यूज कर रही हूँ। मैं बाहर जाके मैं अगर मुझे पास ही में जाना है तो मैं मेरी गाड़ी नहीं लेके जा रही हूँ, मैं साइकिल से जाऊंगी या चल के जाऊंगी। ये जो छोटे छोटे डिसीजंस है, इससे क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे हमारी धरती बच सकती है। जो गवर्नमेंट्स करेंगी उनके लेवल पे करेंगी वो अलग बात है, पर इंडिविजुअल एक्शन पे बहुत ज्यादा आज इम्पोर्टेंस रखा जा रहा है। और यही चीज आप में मुझे दिख रही है कि अगर आप आगे जाके ये डिसीजंस लोगे और ये लोगों को बोलेंगे कि ये करने से हम पर्यावरण को संवर्धन कर रहे हैं, पर्यावरण का हम धरती को बचा रहे हैं, तो आपसे प्रोत्साहित होके कहीं और लोग ये डिसीजंस लेंगे। जो सेरेना विलियम्स है उन्होंने स्टैंड लिया है कि जो मांस का खाना है, अभी आप एज स्पोर्ट्स पर्सन आई रियलाइज दैट यू हैव अ सर्टेन डाइट, आपको कुछ डाइट की चीजें खानी पड़ती है, पर जो ओवर कंजम्पशन है मांस का, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट में मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो सेरेना विलियम्स ने ये स्टैंड लिया है कि जो ओवर कंजम्पशन है मीट का वो कम करना है, और वो उसके बारे में हमेशा बोलती रहती है, पब्लिक में बोलती रहती है, और उनकी वजह से काफी लोग अफेक्ट होते हैं और ये चीजें कम करते हैं। दूसरा जो फोटो है वो केली स्लेटर करके जो यंगेस्ट सर्फर है, उनका तो समुद्र से ही उनका खेल है, समुद्र से उनका बहुत नजदीकी रिश्ता है। उन्होंने देखा कि समुद्र में बहुत पोल्यूशन है, प्लास्टिक का पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल्स है, जिससे समुद्र की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, समुद्र गंदे हो रहे हैं। और उसके बारे में उनको कुछ करना था, तो उन्होंने एक अपना ब्रांड स्थापित किया आउटर नोन करके। और जो समुद्र में पोल्यूशन मिलता है प्लास्टिक का मेनली, उससे वो चीजें बना के वो बेसिकली उनका ब्रांड प्रोपोगेट करता है। तो ये बस 2 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे स्पोर्ट्स पर्संस के जो कुछ बोल रहे हैं पर्यावरण के बारे में, क्योंकि वो पर्यावरण को समझते हैं, उन्होंने उतना एफर्ट लिया है समझने के लिए, और वो चाहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं कि लोगों में भी बदलाव आए। ऐसे अगेन काफी सारे एग्जाम्पल्स है, और इनमें एक वीडियो भी है जिसमें हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स पर्संस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। पर ये आप याद रखिएगा कि आप जब बड़े स्पोर्ट्समैन बनोगे, आप जब खेल में आगे जाओगे, आपको लोग देखने वाले हैं, और इसीलिए आपको इन चीजों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। इवन जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स की संस्थान है, ओलंपिक्स है, विंबलडन है, ये भी अभी पीछे रहे नहीं है। ये भी समझने लगे हैं कि आप एनवायरनमेंट से टक्कर लेके आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसीलिए वो भी अपना जो ये लॉसेन में ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर्स है, जो ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स की तरह से बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होता है, कार्बन एमिशन कम होता है, और एक जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा फंक्शनिंग है, वो इस बिल्डिंग में उन्होंने ऑप्ट किया, ये जान के कि अभी एनवायरनमेंट के साथ ही हमें चलना है। उसी के साथ विंबलडन चैंपियनशिप जो है, वो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ऑन एक्शन ऑन स्पोर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कि मतलब हम एक्शन ले कि क्लाइमेट चेंज हम कम कर पाए, उसका जो इम्पैक्ट है, स्पीड है, वो कम कर पाए। उसके लिए उन्होंने वो कन्वेंशन में खुद को नॉमिनेट किया है, जिसका मतलब ये है कि विंबलडन के जो इवेंट्स होंगे वो लोग ध्यान रखेंगे कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सैकड़ों लोग इतने विंबलडन के मैचेस देखने आते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाए, साइकिल्स यूज कर पाए, ना कि अपने कार्स में आए, ना कि पोल्यूशन बढ़ाए, ना कि कार्बन एमिट फुटप्रिंट बढ़ाए। उसी के साथ प्लास्टिक कंजम्पशन जो है, वेस्ट प्रोडक्शन जो है, वो भी कम हो जाए। इसीलिए ये इवेंट्स ऐसी प्लान की जाएंगी, इसका ये मोटा मोटी मतलब है। और अभी लास्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हो क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने 2 चीजों का समावेश इसमें किया है कि जो अभी आप अभी से कर सकते हैं।
तो ये जो स्लाइड है ये बड़ी ध्यान से देखिएगा, और ये ही मेरा परिसर में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो काम है वो ये है कि शहर का जो परिवहन है वो कैसे हो रहा है, उस पे निर्भर करता है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है। सो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो साधन है परिवहन के, उनके डायग्राम्स है। पहला है कार, दूसरा है इलेक्ट्रिक कार, तीसरा है कि एक कार में 2 लोग हैं, पहला है एक कार में एक ही जन है, 2 व्हीलर है, ट्रैम है, ट्रेन है, बस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, साइकिल है, और चलने वाला एक आदमी है। तो ये सारे साधन है जिससे हम अपने शहरों में, अपने गाँव में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये जो ऊपर गुब्बारे लगे हैं वो दर्शा रहे हैं कि आप जब इन साधनों को यूज करते हैं तो आप कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब आप कार में जा रहे हो और कार में एक अकेला व्यक्ति ही जा रहा है तो सबसे ज्यादा कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से वहां पे पोल्यूशन ना हो, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां पे तो पोल्यूशन हो ही रहा है, इसीलिए उसका भी गुब्बारा बड़ा है। 2 लोग अगर एक कार में जाए तो कार्बन एमिशन कम है, मोटरसाइकिल का उससे कम है, ट्रेन, ट्रैम, बस का कम से कम है। और आप देखेंगे कि साइकिल और चलने वाला जो आदमी है उसका कोई कार्बन एमिशन नहीं है। और ये चीजें आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। आप साइकिल से अपनी ट्रिप्स कर सकते हो, आप चल के अपनी ट्रिप्स कर सकते हो। और आप जब ये 2 चीजें करोगे तब आप अपने शहर के लिए, आप अपने धरती के लिए बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। आप कार्बन एमिशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कार्बन फुटप्रिंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डिसीजंस है, ये जो इंडिविजुअल एक्शंस है, ये हम इमीडिएटली कर सकते हैं। और परिसर का जो काम है वो यही है कि हम लोगों को आज जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे नहीं तुमको कल साइकिल से मतलब साइकिल से ही आना है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं बोल सकती मैं? क्योंकि जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारे शहर है, वो साइकिलिंग के लिए सेफ नहीं है आज की तारीख में। और ये होना बहुत जरूरी है, और ये काम परिसर करता है। ये हम लोगों को बोलते हैं कि आपको आवाज उठाना जरूरी है कि हमारे शहरों में साइकिलिंग के लिए, चलने के लिए बस की सुविधा अच्छी चाहिए, जिससे कि हम ये पर्याय चूज कर सके और कार्बन एमिशन भी कम हो, पोल्यूशन भी कम हो, ट्रैफिक जैम ना हो। और ये सारी ही चीजों के सोल्यूशंस हमें एक स्टेप में मिल सकते हैं। तो आपको 2 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो आप जो ट्रिप्स है, अपनी छोटी ट्रिप्स है, मुझे स्कूल जाना है, दुकान से कुछ लाना है, तो चल के जाए, साइकिल लेके जाए। और दूसरी चीज है ये सोचे कि कैसे आप आवाज उठा सकते हैं कि शहरों में साइकिल की सुविधा अच्छी हो। एक तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हो कि आप अभी बाहर जाके, अब जब जाओगे, घर जाओगे या कहीं जाओगे, तो अपने शहर को ठीक से देखिए कि साइकिलिंग की क्या सुविधा है, चलने की क्या सुविधा है। वो देख के ही आपको फिर आगे के जो आपके डिसीजंस है वो आप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते ही नहीं है कि अरे साइकिल वालों को भी जगह चाहिए, साइकिल वाले के लिए भी शहर सेफ होना चाहिए। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि आप ऑब्जर्व करो। दूसरी चीज, जहां भी आप ये ट्रिप्स कर सको आप ये ट्रिप्स करो कि साइकिल लेके जाओ, चल के जाओ, बस से जाओ। दिस इज वन स्टेप यू कैन डू राइट अवे। और सेकंड जो चीज है वो है प्लास्टिक। आई थिंक प्लास्टिक के बारे में कोई भी मुझे नहीं बोलेगा कि अरे प्लास्टिक तो बढ़िया है, मैं तो प्लास्टिक ही यूज करूंगा। तो ये सबको पता है कि प्लास्टिक इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट फॉर वेरियस रीजंस। पर क्लाइमेट चेंज के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। प्लास्टिक आपके लैंडफिल में, कचरे के गड्ढे में सालों साल, सैकड़ों साल रहेगा, और उससे मीथेन जनरेशन होगा, उससे कार्बन का जनरेशन होगा, और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। सो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कचरे का हम क्या करें शहरों में, ये प्रश्न का उत्तर अगर हमें लाना है तो हमको प्लास्टिक का जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। और इसमें भी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, जो हमारी वो एकदम पतली वाली प्लास्टिक की बैग्स होती है, या प्लास्टिक बॉटल्स है जो हम एकदम खरीद लेते हैं दुकानों से, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हम इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। आप कहीं भी जाए, अपना खुद का घर से पानी का बोतल लेके जाए, बाहर के प्लास्टिक बॉटल्स ना खरीदे, ना यूज करे, कम करे, प्लास्टिक थैलियां ना यूज करे। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो हम डेफिनेटली आज की तारीख में हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये 2 ही चीजें मैं आपके साथ देना चाहूंगी एंड में, कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ करना है तो आप ये 2 चीजें प्लीज करिएगा। इसी के साथ आई थिंक आई एम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। बट जो मैंने बोला कि आई थिंक मुझे वो एक बात बहुत मेरे दिमाग में है कि स्पोर्ट्स पर्सन सेल्फिश ना होके, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के, जो ये एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, अपना प्रभाव यूज कर रहे हैं,
वो मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी। और इसी का एक छोटा सा वीडियो है जो इंग्लिश में है, पर उसके सबटाइटल्स है वो भी इंग्लिश में है, लेकिन उसमें हमारे भारतीय नीरज चोपड़ा भी है, वो हिंदी में बात कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो 4 मिनट का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा कि जो पूरे जग में क्या क्या खिलाड़ी क्या क्या बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और स्पोर्ट के बारे में। तो वो वीडियो में बस ये करना चाहूंगी। सभी लोगों को क्या ठीक से सुना? अच्छा ठीक है, यस। We as athletes, whether we like it or not, are role models, and we can choose to stand up for what we believe in. We can choose to stand with the scientists, the Indigenous peoples, and the children of our planet. We can add our voices to those saying that we will not stand by and accept the irreversible damage that is happening to our planet. When we are running, we need a cool fresh air, we need a clean air, we need a good environment running. The only way is to respect the environment. Our planet is literally on fire. However enormous and incomprehensible the climate crisis is, with its violent weather, famines, forest fires, and forced human relocation, we should find comfort in the fact that it's entirely our own creation. The guilt we feel that we're its cause should also empower us that we are still the authors of our own destiny. और एक ऐसा ही कॉमन गोल हमारे सामने है, अपनी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना। इसके लिए हमको साथ में मिलकर टीम की तरह काम करना होगा। After discovering and understanding how limited but valuable our freshwater resources are, I started to factor in and pay closer attention to my daily water use, but also to consider how much water was being used in the food production lines of the foods that I truly love. Lo sport mi ha insegnato a trovare soluzioni ai problemi e a mettere in atto strategie per risolverli. Sono convinta che sia questo l'atteggiamento individuale e collettivo necessario a cambiare la situazione. We need to take bold and immediate steps towards addressing climate change and robust climate resiliency. Western cities continue to be built with their planning and infrastructure decisions centered around the car. As an Olympic race walker, I've walked my city more than anybody else. I'm acutely aware of how our past decisions have literally fractured our cities, directly contributing to the ongoing climate crisis. Climate change is affecting us all, and it's affecting us in so many different ways, and it's affecting our sport and our training. Every summer we spend training for the outdoor season in Greece, and every summer, without an exception, we have to not train outdoors for several days or often weeks because of how bad the atmospheric pollution and the smoke is from wildfires in Athens. A few months ago, we moved to Colorado, and the first week we spent training in Colorado, we were advised to not be outside due to the wildfires in California and Oregon. Weather has not been so predictable. Sometimes when it's extremely dry, they get dusty and it affects the breathing system. I spend a huge proportion of my life outdoors, enjoying everything that the environment and this planet enables us to do. But it isn't the same for everyone. Climate change is getting worse, and I find it shocking that 7 million people lose their lives annually due to breathing in polluted air. Εμείς οι αθλητές είμαστε σαν στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο κάθε αθλητής παλεύει για τον εαυτό του. Είναι σαν μια μάχη. Η μάχη όμως αυτή, ενάντια της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να την κερδίσουμε μαζί και με την απήχησή μας να επηρεάσουμε όσους περισσότερους μπορούμε να μας βοηθήσουν στη μάχη αυτή. The science is clear. We must act decisively to combat climate change, and we must act now. I'm proud of the way our athletes are responding to this great global challenge, the way they're becoming engaged in the issues, and the way they are using their voice to encourage their fellow athletes, fans, and their elected leaders. Their message is that we must all work together for a healthy environment for the future of our sport and the future of our planet. We should pay attention. So let's stand together and find ways that we can protect and save the planet that we love. It's not too late to escape the mindset that brought us here. Aiutiamo l'ambiente, aiutiamo il nostro futuro. But we can all do more. Basta l'indifferenza. We must do this. It's all about climate change. We can choose to fight. È questo il momento di agire. It's time to take action. We can still fix this. It's time to take action now. Let's work towards a better tomorrow.
यस, थैंक यू। एंड अगर अभी कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगी। मैंने चैट देखा तो नहीं है। Oh yeah, I also missed the 30-minute limit. Sorry for that. So just for the coaches here, I know that there are a lot of kids looking at us. बच्चों को कोई क्वेश्चन है? सब हंस रहे हैं वहां पे बैठ के। कोई प्लास्टिक का बॉटल कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? हाथ ऊपर करो। ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, पूरा ऊपर करो हाथ। Just scared. देखो कितने जन प्लास्टिक का बॉटल यूज कर रहे हैं कि नहीं। आज मैम ने क्या बताया कि हम जितना प्लास्टिक, सब लोग ने हाथ ऊपर कर दिया मृदा में। हे भगवान। ओके, आज क्या समझ में आया कि प्लास्टिक की बोतल यूज करनी है कि नहीं करनी है? क्या करना है? नो। किसने नो बोला? मुझे सुनाई दिया पर पता नहीं कौन बोला। मृदा के बच्चे क्या बोल रहे हैं, हाँ कि ना? प्लास्टिक यस और नो? सब म्यूट पे है। नहीं करनी है ना, नहीं करनी है। प्लास्टिक की बोतल जितनी कम यूज करेंगे उतनी अच्छा है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? यस यस, ओके, वेरी गुड। और क्या बताया मैम ने? और एक चीज बताई जो हमें करनी है। स्कूल में कैसे जाते हैं लोग सब? यहाँ पे चल के जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस में जाते हैं? कैसे जाते हैं स्कूल में? साइकिल, ओके। कोई है जो कार में जाता है यहाँ पे? यार तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार। हम लोग हैं वो जो, हम सब कार वाले लोग हैं यहाँ पे, पागल लोग। आप सब तो अच्छे बच्चे हैं यार, टेंशन नहीं है हमें एक्चुअली, वो अच्छी बात है। और क्या समझ में आया? स्पोर्ट्स कुछ समझ में आया? स्पोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है? पॉल्यूशन होगा तो हम दौड़ पाएंगे अच्छे से? नो नो ना। तो पहली चीज सब लोग करेंगे यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है कि सब लोग यहाँ पे प्लास्टिक बोतल सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। और हम बिकॉज बहुत पानी पीते हैं, बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, तो हमारे पास बहुत टाइप्स की बोतल्स भी होती हैं। जितना हो सके उतना एक अच्छा, कौन से श्वेता मैम, कौन सी बोतल, कौन से मटेरियल का बोतल यूज करना चाहिए? स्टील का बॉटल आप यूज कर सकते हो। कांच का डिफिकल्ट है मैनेज करना, पर स्टील का तो डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लास्टिक में भी क्या है कि अलग अलग प्रकार है। जो ये बिस्लरी की बोतल है, इस पे कई बार ऐसे रिसाइकल का साइन रहता है, लेकिन वो रिसाइक्लेबल नहीं रहता है। जो थिक प्लास्टिक है वो फिर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ऐसा भी है कि आप प्लास्टिक की चीजों में पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, तो वो जो प्लास्टिक है, वो जो चेन पॉलीमर्स है, वो आपके खाने में भी आ जाते हैं, पानी में भी आ जाता है, तो वो ऐसे भी आपके लिए अच्छा है नहीं। तो प्लास्टिक ना ही यूज करे तो अच्छा है। अगर यूज करना है तो जो मोटा प्लास्टिक है उसकी बॉटल्स आप यूज कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट है कि आप स्टील के बॉटल्स यूज करो। समझ में आया क्या यूज करना है? कौन सी बॉटल यूज करनी है? यस। क्या? यस फॉर एवरीथिंग। यस नहीं, कौन सी बॉटल यूज करनी है बताया गया अभी। कौन से मटेरियल की? स्टील। किसी ने स्टील चिल्ला दिया, बस अब खत्म हो गया, जब पेशेंस खत्म हो गया है। एंड 1 घंटा हो रहा है अभी। किसी कोच को यहाँ पे मैम से कोई क्वेश्चन है या कुछ फीडबैक? हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा या कोई कोच मैम को बताए कि कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, बोरिंग लगा। मैम अच्छी है, वो बोरिंग लगा तो भी कुछ बोलेंगी नहीं। कोई बताना चाहेगा मैम को कैसा लगा सेशन? thumbs up, Shweta, you got thumbs up from Mrida. Nice, thank you. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ मैम। यस, कौन बोल रहा है? अजीनाथ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ मैम।
बोलिए। तो बोले कॉपर का बॉटल यूज किया तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्यूट, वो तो बढ़िया है। वो बोल दो, मैडम ने अगर कह दिया ना सब बच्चों को कॉपर का बॉटल यूज हाँ करना है, हाँ हाँ हाँ। तो मैडम श्वेता मैडम बोलेंगे तो सब यूज करेंगे। नहीं तो वो रोज जब आते हैं क्लब पे तो प्लास्टिक का ही बॉटल लाते हैं, स्टील का कोई नहीं लाता। जी जी, तो सर बोल रहे हैं कि कॉपर, आपको कॉपर का बॉटल पता है कैसे दिखता है? एक थोड़े से ऑरेंज कलर जैसे दिखता है, स्टील का तो एकदम सिल्वर कलर का दिखता है। कॉपर का जो बॉटल है उसमें अगर आप पानी पियोगे तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप वो भी बॉटल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके मैम। वंडरफुल। और कोई बच्चा कोई बोलना कुछ बोलेगा प्लीज? कोई वॉलेंटियर है जो खड़ा होके बोलना चाहेगा कैसा लगा सेशन मैम के लिए? कोई बोलना चाहेगा? कोच ने हमारे साथ बात कर ली। हाँ मैम, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और हमको बहुत सारा नॉलेज भी मिला। वंडरफुल। कौन बोला मुझे समझ में नहीं, अदिति बोली क्या? कोई कौन बोला अभी? अदिति शुक्ला। यस। Thank you अदिति, thank you श्वेता, your session was nice. Anybody else? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके तो एक काम करते हैं, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज सब लोग, एक बार फोटो ले लेते हैं। सुभाष, प्रवती, वरपति, धुला, सौरभा, दत्तू सर भी हैं। हेलो दत्तू सर, हाउ आर यू? हाँ मैम, सर को कुछ बोलने को कहो, सर बोलेंगे कुछ अच्छा। कौन से सर? व्यवहार सर है तो दत्तू सर। व्यवहार सर बोल दीजिए, आपको कैसा लगा सेशन? यूजफुल लगा? म्यूट पे हैं आप। नहीं दत्तू सर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके तो लेट्स टेक अ पिक्चर क्विकली। ओके आई थिंक इतना ही मिलेगा हमको। आई एम गोइंग टू टेक दिस पिक्चर, एवरीबॉडी प्लीज स्माइल। वेट, हाँ स्माइल करते रहो सब लोग। ओके परफेक्ट, थैंक यू। Okay, so Meghna, you can. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. 1 minute. We're just doing a vote of thanks. She has a session at 6 again, so Meghna, just make it quick. Yeah. Like everyone said, the session has been quite insightful. Personally, we all, have a lot of lack of awareness around all these topics. Although on a macro level, we feel that government is taking steps, or it's always the blame game. So it becomes quite important for us individually to even take smaller steps to focus on all these issues. And thank you so much, Shweta, for conducting this session. It has been quite enriching. And thank you all the participants for being interactive, and thank you for joining the session. Thank you so much. Have a great weekend. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. बहुत अच्छा लगा मैम, बाय।